Hello everyone, welcome to our YouTube channel APC Academy. In this video, we are going to talk about modifications of taproot. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टर्म मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. एज वी नो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इट फिक्स प्लांट इन द सॉइल. अगर प्राइमरी फंक्शन के अलावा बाकी कोई एडिशनल फंक्शन रूट्स को परफॉर्म करना है, देन दोज चेंजेस which takes place in the root are considered as modifications. like जो रूट होगी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, फिजियोलॉजी चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगी और उन चेंजेस को कंसीडर किया जाता है मॉडिफिकेशन. तो बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट की. मेनली अगर मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है, इट मीन्स एडिशनल फंक्शन जो है वो परफॉर्म होंगे. एडिशनल फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन. So first modification is fleshy or storage taproot. As the name indicates, storage means root जो है वो फूड स्टोर करेगी, उसके लिए मॉडिफिकेशन होंगी, चेंजेस होंगे, तो अलग अलग शेप्स अटेन करेगी. सो उसी बेसिस पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स रहेंगे. फर्दर क्लासिफिकेशन है स्टोरेज और फ्लैशी टैप रूट का. सो फर्स्ट इज कोनिकल टैप रूट. कोनिकल टैप रूट मीन्स कोन इज रूट इज लाइक अ कोन. सो कोन लाइक रूट like this. शेप है कोन की तरह. अब इसमें क्या होगा कि जो बेस है इट इज थिक एंड देन ग्रेजुअली इट टेपर्स टुवर्ड्स द अपेक्स. फर्दर इसमें ब्रांचिंग होगी, सो सेकेंडरी ब्रांचेस और रूट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड एग्जाम्पल इज कैरेट. Second modification is fusiform taproot and shape of the root is spindle like. अब स्पिंडल लाइक जो शेप है इसमें क्या होगा कि जो बेस होगा, रूट का बेस और जो अपेक्स है, टिप होगी, दे आर थिनर. सो अपेक्स एंड base is comparatively thinner and middle portion is roughly thick. It is roughly thick and example is reddish. Third type is napiform taproot. In this type of root, shape of the root is nearly spherical. It means base of the root is broad and then suddenly it tapers. And examples are turnip, beetroot. Fourth modification is tuberous taproot. It is tuberous taproot and here the shape is irregular or we can say it has no definite shape. So irregularly lobed root की formation होगी and example is roots of Mirabilis jalpa plant, commonly known as 4 o'clock plant. सो ये है मॉडिफिकेशंस फ्लैशी और स्टोरेज टैप रूट की. नेक्स्ट हम बात करेंगे नोड्यूलेटेड टैप रूट्स. Nodulated taproots means
root system has nodules. So second type, nodules are present, and this type of taproots are found in leguminous plants. Let's draw. ये है taproot. So this is taproot system and it contains nodules. So mainly nodules इसमें present होंगे और nodules में जो है वो बैक्टीरिया present होगा, that is nitrogen fixing bacteria rhizobium. And function of rhizobium is to fix atmospheric nitrogen. Free atmospheric nitrogen, it gets converted into organic compounds of nitrogen, nitrogen like nitrates, nitrites. सो इट मीन्स जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को ऐसे जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, नाइट्रेट्स की या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे. सो बैक्टीरिया जो कि नोड्यूल्स में प्रेजेंट होगा ये फिक्स करेगा नाइट्रोजन को, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. सो relationship between or interaction between plant, leguminous plant and bacterium is symbiosis or mutually beneficial relationship. So it is mutualism or symbiosis. बैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा एंड इन रिटर्न बैक्टीरियम गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट. एंड इंपॉर्टेंट है, नोड्यूल्स में पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो कि पिंक कलर प्रोवाइड करेगा. इट इज लैग हेमोग्लोबिन. सो पिगमेंट इज लैग hemoglobin, leg for leguminous plants and hemoglobin is a oxygen carrying pigment. So this pigment is important because it acts as a oxygen scavenger. Which provides anaerobic conditions to fix nitrogen, because bacterium जो है rhizobium ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा in anaerobic condition और anaerobic conditions provide करेगा leg hemoglobin pigment. So third type is and third modification is pneumatophores. Pneumatophores are also known as respiratory roots. Also known as respiratory roots. So respiratory roots हैं तो क्लियर हो गया, फंक्शन परफॉर्म करेंगे रेस्पिरेशन का. ठीक है, कौन से प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है? सो न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स, बेसिकली स्वैम्प एरियाज. स्वैम्प सेलाइन हैबिटेट रहेगा, वहां पे जो है वो न्यूमेटोफोर्स की फॉर्मेशन होगी. सो स्वैम्प एरियाज हो गए, सेलाइन हैबिटेट हो गया, मतलब जितने भी जो एरियाज होते हैं जैसे सी सोर्स है, रिवर एजेस होंगे, जहां पे दलदल होगा तो वहां पे फॉर्मेशन होगी न्यूमेटोफोर्स की, बिकॉज वाटर लॉक्ड सॉइल वहां पे होगी जिसमें कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी. सो रूट इट कम आउट and form a pneumatophore for respiration, and the pores which help in respiration are called lenticels. So these pores, lenticels, are also known as pneumathods.
तो लेंटिसेल्स और न्यूमोथैड्स जो है वो पोर्स रहेंगे जो कि ऑक्सीजन की इनटेक में हेल्प करेंगे, बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अब अगर बात की जाए, जो निमेटोफोर्स हैं ये सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एरियल पार्ट्स में आ जाएगा, लेकिन डेवलप कहां से होते हैं, मेन रूट से ही डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये कंसीडर की जाएंगी टैप रूट की ही मॉडिफिकेशंस। सो टर्म है हेलोफाइट्स। सो वी कैन ऑल्सो say that nematophores are found in halophytes. So this was about taproot and its modifications. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.